إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم۔ حضرات، رمضان کا مہینہ اللہ کی برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہمیں پھر نصیب ہوا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کائنات میں، عمل میں، نیکیوں میں ایک ذرہ برابر کا زیر و زبر کر سکے۔ کوئی آدمی ایک معمولی نیکی کو نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے میں ہم اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ رمضان کی آمد بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے پوری کائنات میں، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کو سنبھالو، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، پوری کائنات میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہاں آدمی اپنے اس کو جو اعتبار ہوتا ہے، آدمی کو جو اختیار ہوتا ہے، پوری دنیا میں بڑے سے بڑا ملک 30 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، حیران پریشان ہو جاتا ہے، کوئی خاص جگہ آتا ہے، لیکن پوری کائنات میں رمضان کے مہینے میں وہ تبدیلی آتی ہے کہ صبح و شام کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ یار پکڑو، یہ سب کیا تماشے ہیں؟ مسجد ہے، لے جاؤ باہر اس کو۔ پورے رمضان کے مہینے میں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ صبح و شام میں نقشہ بدل جاتا ہے، اللہ کی برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں، فرشتے رحمت کے نازل ہوتے ہیں، پورا جیسے نورانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کی سوچ، پوری کائنات میں تبدیلی، نورانیت کا ماحول، سوچ میں تبدیلی، عمل میں تبدیلی۔ ایک طرف تو یہ رمضان کا مہینہ، برکت کا مہینہ ملتا ہے، اور اس طرح ملتا ہے فراوانی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ لگتا ہے صبح و شام کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ فرشتوں کی رحمت اور برکتیں فرشتے لے کر کے اترتے رہتے ہیں، کثرت سے یہ سب انسان کو ملتے ہیں مواقع، نیکیوں کو کمانے کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اتنی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ ایک نیکی اگر انسان کرتا ہے تو عام دنوں میں اگر 10 نیکی ملتی ہے تو رمضان کے مہینے میں وہی کام کرو تو 70 نیکی مل سکتی ہے، 700 نیکی مل سکتی ہے، انگنت نیکی مل سکتی ہے، ہزاروں نیکی مل جاتی ہیں۔ کہ انسان کے بس کی بات ہے؟ عطا کرے کوئی؟ دنیا میں انسان کام کرتا ہے، اس کا بدلہ ملتا ہے، اور اس بدلہ ملنے کی جو صورتحال ہوتی ہے، وہ بدلہ ملنے کی جو صورتحال ہوتی ہے، کتنا بدلہ دے سکتا ہے، کتنا عطا کر سکتا ہے، کتنا دے سکتا ہے، انسان کی بس کی بات ہے؟ لیکن پوری کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ نے وہ تبدیلی پیدا کی کہ فرشتے رحمت بھی آتے ہیں، انسان کے گناہوں کو ختم کیا جاتا ہے، بخشش کا بھی اعلان ہوتا ہے،
लाखों करोड़ों इंसान अगर तवज्जो दें तो उनके गुनाहों को अल्लाह ताला ख़त्म भी करता है, और नेकियां इतनी कसरत लिखी जाती है कि कोई कुरान करीम की अगर एक लफ्ज़ पढ़ ले तो 10 नेकी से लेकर के 70 नेकी, 70 से 700 नेकी, और 700 लेकर के अनगिनत नेकियां मिलती हैं। ये सारे मौके कौन देता है? गौर करने की बात यह है कि सारे मौके कौन देता है? ये अल्लाह ताला देता है। सारी दुनिया के लोग मिल करके अगर ये फैसला करना चाहें किसी नेकी को बढ़ाने और किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें, किसी के बस की बात है? नेकियां देना और बुराइयों की सज़ा लिखना ये अल्लाह के निज़ाम में दाखिल है, इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी तब्दील हो जाए कि एक नेकी से अगर आप करते हैं तो 10 से 70, 700, 7000 अनगिनत अल्लाह ताला बढ़ा दे, किसके बस की बात है? गौर करने की बात यह है कि रमज़ान का इतना बाबरकत महीना मिलता है, और अल्लाह ताला कितनी मेहरबानियाँ होती हैं, इतना करम होता है, इतनी बख्शिश होती है, इतनी रहमतें होती हैं, इतनी बरकतें हो सकती हैं कि दुनिया के लोग गिन नहीं सकते हैं। इसके बावजूद इंसानों की बदनसीबी ये होती है कि इस महीने से जितना फ़ायदा उठाना चाहिए, फ़ायदा उठाने की सकत नहीं हो पाती है। इसलिए रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि दुनिया में 3 बहुत बड़े बदनसीब होते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा बदनसीब वो होता है कि रमज़ान का महीना पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में गुजारिश न करे, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार न करे, का वो सबसे बड़ा बदनसीब होता है। और ये बदनसीबी रमज़ान के महीने में देखिए मस्जिदें खाली हैं, बदनसीबी की अलामत है कि नहीं? यहाँ तो ये रमज़ान के महीने में मस्जिदें भर जानी चाहिए, हाथ उठ जाने दुआओं के लिए, ज़िक्र अस्कार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावत होनी चाहिए। ये बदनसीबी रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि आदमी सहरी खाता है, फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़ी सहूरि बरका। सहरी खाते हैं ना, सबको मालूम है, सब सहरी खाते हैं। क्या सहरी खाना या न खाने में कोई फ़र्क नहीं है? आप बगैर सहरी खाए भी रोज़ा रख सकते हैं। तो एक तो ये पहचान बताई गई कि दूसरे लोग सहरी नहीं खाते हैं, रोज़ा रखने का तस्वुर तमाम मज़ाहिब में है, लेकिन दूसरे लोग सहरी नहीं खाते हैं। मुसलमानों की ये शनाख्त दी गई है, मुसलमानों की पहचान बताई गई है कि वो सहरी खाते हैं। और फरमाया तशहरू फ़इन्न फ़ी सहूरि बरका, सहरी खाओ, सहरी खाने में बरकत। और ये भी फरमाया कि सहरी खाने में ताख़ीर करो और इफ्तार में जल्दी करो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि फजर की नमाज पढ़ने से पहले कुछ देर पहले 10 मिनट तकरीबन मसलन आप सहरी वहाँ तक पहुँचे, उस वक्त खाएँ। ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा पहले खाए बैठे रहें। उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं। इस्लाम में ज़ाब्ते की सबसे बड़ी अहमियत होती है कि ज़ाब्ता बता दिया गया है, उस पर अमल करो, और उसकी बरकतें, उसकी हिकमतें, उसके फ़ायदे अल्लाह ताला जानता, आपको पता भी नहीं होगा। इसलिए शरीयत सबसे बड़ा ज़ाब्ता होता है इंसान के लिए कि जो आपके समझ में आए ना आए, जो दीन ने कह दिया, रसूल ने फरमा दिया, उस पर आँख बंद कर अमल करो। इसलिए कि उसको नेकी देना, उसको बाबरकत बनाना, उसके फ़ायदे तुमको देना, मसलहतें उसकी आम करना, वो अल्लाह की बस में है, ज़ाब्ता है। तो सहरी खाने में बताया कि देर में खाओ। बहुत से लोग एहतियात, आधा घंटा पहले खा लो, 1 घंटा पहले खा लो। ये कौन सा एहतियात? जब वहाँ हुक्म मौजूद है, ज़ाब्ता मौजूद है, तो एहतियात कहाँ से आ गया? इसीलिए इफ्तार के टाइम में फरमाया, कहा इफ्तार के टाइम में इफ्तारी करते हो तो जो खुशी तुम्हें हासिल होती है, अल्लाह ताला को उससे ज़्यादा खुश होता है। अपने बंदों को देखा, कहा अल्लाह की खातिर लोगों ने भूख रोका, प्यास रोका, अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सारा जो इंसान को इजाज़त मिली है, जिनसी हाजत, भूख प्यास, जितनी इंसान की बदन की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें रोक देता है, तो अल्लाह ताला खुशी से हाजिर होती है। कहा सहरी में, इफ्तार में जल्दी करो, हुक्म दे दिया गया। बहुत सा ऐसा वाक़या हुआ कि रसूल करामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं सफ़र में, और रमज़ान का महीना है, इफ्तार का टाइम हो गया। आपने कहा लाओ दूध दुहो, इफ्तारी की जाए। बाद साहब ने कहा अल्लाह के रसूल अभी देखिए अभी सूरज के आसार बाकी हैं। आपने 3 मरतबा बयान फरमाया, फिर आपने 3 मरतबा कहा उतरो, इज्ता लाना, दूध दुहो, इफ्तारी की जाए।
3 मरतबा, तीसरी मरतबा में कहा अल्लाह के रसूल कि देखिए ये एहतियात क्या चीज़ होती है। जैसे आपको नज़र आए सूरज डूब गया है, फ़ौरन इफ्तारी करो। ये नहीं देखो अरे अभी लाली बाकी है, अभी फना बाकी है, अभी फना बाकी है। ज़ाब्ता अल्लाह के रसूल ने बताया। अब लोग कहाँ से अपने तरफ से एहतियात ले आते हैं। इजाफा हुआ ना, इजाफा जब होता है तो इसी से शरीयत और ज़ाब्ता सब टूट जाता है। आज जो मुख्तलिफ ढंग से लोगों ने इजाफे किए शरीयत में, देखिए एक एक नुक्ते को देखते चले जाइए। शहरी को बताया, उसमें बरकत बताइए, ज़ाब्ता बताया, कब आप खाना चाहिए, इफ्तार को बताया, इफ्तार खाइए कीजिए, इफ्तार में कितनी बरकतें होती हैं, कितनी खुशी होती है, उस वक्त दुआ कबूल होती है, और ये कि उसमें जल्दी करनी चाहिए। फरमाया कि जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे और सहरी में ताख़ीर करते रहेंगे, लोग खैर में रहेंगे। समय तब्दीलियाँ पैदा कर ली जाती हैं। अब एहतियात के तौर पर कैलेंडर बनते हैं तो 4 मिनट एहतियात, शियों के यहाँ 10 मिनट एहतियात, फलां के यहाँ फलां एहतियात। अल्लाह ताला से और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा लोग इंसान समझदार है, ज़्यादा दिन को समझते हैं, ज़्यादा तक़वा है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वही अगर बढ़ती जाएं तो बसा औक़ात एक मुसलमान अगर ये अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अगर इफ्तार जल्दी करे और सहरी में ताख़ीर करे तो इसकी जितनी बरकतें हो सकती हैं वो बरकतें भी उसके लिए बहुत काफ़ी हो सकती हैं पूरे रमज़ान में। लेकिन इसको नज़रअंदाज किया दिया जाता है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत हो जाती है एहतियात के नाम पर। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के बारे में बयान फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानो वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। आदमी अगर अल्लाह की खातिर रोज़ा रखता है, एहतसाब, ईमान एहतसाब मतलब होता है कि पक्का उसका ईमान है कि अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह का हुक्म है, सर तस्लीम खम है, और एहतसाब उम्मीद रखे कि इसका सवाब मिलेगा और कोशिश करे कि रमज़ान को रोज़े को इखलास से रखे, तो उसका अजर क्या हुआ? कहा उसका अजर ये हुआ कि उसके पिछले गुनाह जितने माफ़ हो जाते हैं। पिछले गुनाह माफ़ होने का मतलब क्या होता है? शराइत है इसके साथ, ये नहीं कि ज़िंदगी भर डाका डालते रहे, चोरी करते रहे, आदमी गस्ब करता रहे, ख़यानत करता रहे, मक्कारी करता रहे, नमाज रोज़ का परवाह नहीं करे, सूदखोरी करे, रमज़ान का महीना आया हाथ उठाया माफ़ हो गया। शुरूत है हर एक के, यानी अगर आप पूरे महीनों में, पूरे साल में दीन मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे और रमज़ान का रोज़ा भी आया तो फिर इसकी जितनी बरकतें हैं आपको हासिल हो सकती हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी भर बिदात करते रहे, शिर्क करते रहे, हरामखोरी करते रहे और उसके बाद समझें इस हदीस को बस इस सिम ने हमें भी माफ़ कर दिया गया, हमारे सारे गुनाह जितने माफ़ कर दिए गए, खिलवाड़ नहीं है दीन। हर एक के ज़ाब्ते तय हैं। ये उनके लिए है जो दीन के मुताबिक सच्चे मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारते रहे और अल्लाह ताला ने मौका फराहम किया तो इसकी जितनी बरकतें हो सकती हैं वो सारी बरकतें उनको मिल सकती हैं। हाँ, एक ज़रूर एक पॉइंट होता है कि ये रमज़ान का महीना इस तौबा का ज़्यादा से ज़्यादा तौबा मग़फ़िरत का महीना होता है। जितनी भी शैतानत आदमी करता रहा, अगर रमज़ान के महीने में उसने अल्लाह की बारगाह में खुलूस क़ल्ब के साथ तौबा किया, अपनी गुनाहों की माफ़ी चाही, रोया, गिड़गिड़ाया, तो उसके भी पुराने गुनाह माफ़ हो सकते हैं। यहाँ ये गुंजाइश रखी गई है, माफ़ हो सकते हैं। और जो आदमी सही ढंग से रहा, सही ज़िंदगी गुजारता रहा मुसलमान बन करके पूरे साल, उसके लिए सारी बरकतें, मग़फ़िरत, रहमत, सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। जितना सब कुछ रमज़ान के महीने में जितने सवाब होते हैं, जितनी बरकतें होती हैं, जितने मग़फ़िरत के चांस होते हैं, सब कुछ आदमी को मिल जाता है। तो ये चीज़ समझना चाहिए। इसी तरह रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कामा रमज़ाना ईमान वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अगर आदमी पक्के सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में हुजूर हाज़िरी दे करके अजर का तलब होता है और तरावी पढ़ता है, क़यामुल लैल करता है, अगर क़यामुल लैल करता है तो उसके बारे में फरमाया कि उसके सारे पिछले गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। ये है बरकतें। और ये जो पहले बयान किया कि नेकियां रमज़ान के महीने में 7 गुना 700 गुना अनगिन बढ़ा दी जाती हैं। तो इसमें मेहनत करनी होती है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान है
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینے آتا تھا اور خاص طور پر جب آخری دہا ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے محنت کرتے تھے، رات جاگتے تھے، عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو یہ محنت کا مہینہ ہے، کاہلی کام چوری کا مہینہ نہیں ہے، غفلت کا مہینہ نہیں ہے۔ اس میں انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے کہ جتنے منافع ہو سکتے ہیں، جتنے فائدے ہو سکتے ہیں رمضان کے مہینے کے، اور فائدے کیا ہیں؟ برکت، رحمت، مغفرت، اجر کی زیادتی اور گناہوں کی معافی کا چانس، توبہ استغفار کا چانس، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے چانس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کوششیں کرنی چاہیے کہ جہاں جتنا کام، جس جگہ جتنی نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں ان سب کو حاصل کریں، محنت کریں، کوشش کریں، توجہ کریں۔ اور رمضان کا مہینہ صرف یہی نہیں کہ آپ نوافل ہی پڑھتے رہیں اور ذکر و اذکار ہی کرتے رہیں، بلکہ جتنی خرابیاں آپ کے اندر ہیں اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور وعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہا جو آدمی جھوٹی بات اور جھوٹی زندگی جو گزار رہا ہوتا ہے اگر اس کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس مہینے میں انسان کی اپنے اخلاق کو سدھارنے کا موقع ہوتا ہے، اپنے عقیدے کو سدھارنے کا موقع ہوتا ہے، اپنے خیالات کو سدھارنے کا موقع ہوتا ہے، اپنی عادات کو بدلنے کا موقع ہوتا ہے، اپنی غفلت کو دور کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان ایک مسلمان چاقو چوبند بن جائے، محنتی بن جائے، دین کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ سچا مسلمان بن جائے، اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو مکت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سب سے بڑا واقعہ ہوتا ہے رمضان کا مہینہ اس کائنات میں۔ پورا نظام زندگی، عالم حاضر، عالم غیب، ہر ایک میں اس کی تبدیلی آ جاتی ہے۔ سارے جتنے سرکش شیاطین ہوتے ہیں باندھ دیے جاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ بہکانے کا کم موقع رہے، تاکہ انسان کو نیکی کرنے کا چانس بڑھ جائے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، نہیں کرم ہے؟ کوئی آدمی ایک شیطان کو کسی کو باندھ سکتا ہے؟ اگر جن کسی بھوت سوار ہو جاتا ہے، کوئی شیطان سوار ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سارے سرکش شیاطین کو باندھ دیتے ہیں۔ کس لیے؟ نظر عنایت ہے مسلمانوں پر، مہربانی ہے تمام مسلمانوں پر، لیکن یہ ساری چیزیں انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آنکھ بند کر نہیں رہنا چاہیے۔ جو دین کی برکتیں ہیں، دین کی جو شکلیں ہیں، دین کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھے، جانے، محنت کرے، تب جا کر کے بہت کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ان پڑھ ہو پھر بھی اگر رمضان کے مہینے میں طے کر لے کہ اپنے آپ کو بدل ڈالیں گے، اپنے آپ کو نیک بنا ڈالیں گے، آپ کو سچا بنا ڈالیں گے، اپنے آپ کو متقی بنا ڈالیں گے، تو اس کے لیے بھی چانس ہے۔ ایک دنیا کا سب سے بڑا علامہ ہے تو اس کے لیے بھی چانس ہے، لیکن بہت بڑا علامہ ہو لیکن اگر اس کے اندر غفلت موجود ہے، اس کے اندر شوق نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو وہ بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ان پڑھ بھی اگر ہے، رمضان کے مہینے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، جذبہ ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بہترین انسان بنا سکتا ہے اور وہ بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے تاکہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا ڈالیں، اللہ کا محبوب بنا ڈالیں، اللہ کا قریبی بنا ڈالیں، جنتی بن جائیں، جہنم سے نجات حاصل ہو جائے، اور جتنی برکتیں ہیں دین کی سب کچھ آپ کے لیے کھل جائے۔ آپ دین کی ہدایات کو جان لیں، دین کی بھلائیوں کو جان لیں، دین کی مصلحتوں کو جان لیں، دین کی خوبیوں کو جان لیں، دین کے کمالات کو جان لیں۔ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے۔ رمضان کا مہینہ کی ایک جہت نہیں ہے، دسیوں جہت ہیں۔ آپ چاہیں اپنے سماج کو اس میں سدھار سکتے ہیں، معاشرے کو سدھار سکتے ہیں، معیشت کو سدھار سکتے ہیں، فکر کو خیال سدھار سکتے ہیں، عادات و اطوار کو سدھار سکتے ہیں، عقیدے کو دور کر سکتے ہیں۔ ساری چیزیں اس میں سدھارنے کے چانس ہوتے ہیں، اور انسان اگر جذبہ رکھے تو اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ یہ امکان رمضان کے مہینے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے نظام رمضان کے مہینے کا کہ انسان کو سدھار کر رکھ دے، لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی، غفلت کو چھوڑنی پڑے گی، نیند کو چھوڑنی پڑے گی۔ جو نماز کو 5 وقت پابندی سے پڑھیں، نماز رمضان کے مہینے میں خلوص سے دل کے ساتھ حاضر ہوں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار کریں، یہ رمضان کے مہینے کے حاصل ہوتے ہیں۔ تراویح کا اہتمام کریں، لیکن اگر جذبہ نہیں ہے تو تراویح میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کی مساجد بھری ہوتی ہیں، لیکن اہل حدیث کی مساجد خالی ہوتی ہیں۔
सुन्नत का दावा बड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक ही अमल करने में सबसे पीछे। जिधर जाओ तमाम लोगों की इस वक्त मस्जिदें भरी रहेंगी, लेकिन बदनसीब अहले हदीसों के यहाँ देखो मस्जिदें यहाँ भी खाली होती हैं रमज़ान के महीने में। न जज्बा है, न शौक़ है, सिर्फ दावादारियाँ, सिर्फ शेखियाँ बन के रह गई हैं। तो जज्बा होना चाहिए। और इस महीने में इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को चांस दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सकता है, अगर रमज़ान के महीने में मुखालिफत करता है, रोज़े को छोड़ता है, तो उसका अज़ाब भी उसी तरह है। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि अगर जानबूझ करके एक आदमी रमज़ान के एक रोज़े को छोड़ दे, 70 साल रोज़ा रखता रहे, फिर भी भरपाई नहीं हो पाएगी। और रमज़ान के महीने में अगर एक रोज़ा जानबूझ के छोड़ दे तो जहन्नम के इतने निचले गड्ढे में जाएगा कि वो 70 साल तक गिरता रहेगा, तो जाकर जहन्नम के पैदे में पहुँचेगा। तो इसी तरह रमज़ान के महीने के रोज़े को अगर आदमी नज़रअंदाज करता है, छोड़ता है जानबूझ करके, तो उसी तरह इस जुर्म की सज़ा भी है। एक रोज़ा अगर छोड़ दे, एक रोज़ा अगर आदमी जानबूझ कर छोड़ दे, तो उसकी तबाही के लिए, उसकी बर्बादी के लिए और उसके जान में जाने के लिए समझिए अपने आप को तैयार कर लेता है। और कोई आदमी बचा नहीं सकता है, कोई आदमी उसके जवाब का फतवा नहीं दे सकता है, कोई आदमी उसकी बुराइयों को कम नहीं कर सकता है, कोई आदमी उसकी सज़ा को कम नहीं करवा सकता है। शर्त यही है कि आदमी अपने आप को तैयार करे। आज देखिए कितने ऐसे हैं कि बदनसीब जिनको रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने की तौफीक नहीं मिलती है, रोज़ा छोड़ते हैं। रोज़ा कोई मामूली काम नहीं है। बताया कि पूरी कायनात में तब्दीली आ जाती है, सुबह शाम में तब्दीली आती है, रहमतें उतरती हैं, बरकतें उतरती हैं, नूर की बारिश होती है, फरिश्ते बरकत लेके उतरते हैं, रहमत लेके उतरते हैं, मग़फ़िरत का ऐलान होता है। ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी एक आदमी इतना सरकश निकल जाए, इतना जाहिल निकल जाए, इतना गंवार निकल जाए, इतना बेसमझ निकल जाए कि रोज़े की उसकी अहमियत रहे ही नहीं और रोज़ा छोड़ दे, तो ऐसा आदमी दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान होता है। जो आदमी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ दे वो दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान होता है, वो दुनिया का सबसे नासमझ इंसान होता है, और दुनिया का सबसे लाखैरा इंसान होता है, वो दुनिया का सबसे कमतरीन इंसान होता है, वो दुनिया का सबसे जलील तरीन इंसान होता है। जो अल्लाह सारी कायनात को तब्दील कर दे, जो अल्लाह रहमत के फरिश्तों को सारी दुनिया में बिखेर दे, इसके बावजूद इंसान को ये तौफीक ना हो, इंसान को इतनी ज़्यादा समझ ना हो कि वो इस महीने की बरकतों को हासिल कर सके। रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ते हैं, तरावी का एहतमाम होता है। तरावी कैसे पढ़नी है? तरावी में हुजूर क़ल्ब होना चाहिए, एहतमाम होना चाहिए, आदमी किसी को छोड़े नहीं, तवज्जो से पढ़े और गौर से कुरान करीम को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगाए, तब तरावी होती है। बहुत से ऐसे भी होते हैं रमज़ान के महीने में कि तरावी पढ़ने के लिए लौंडे ख़ास तौर पर अहले हदीस लौंडे पीछे बैठे रहेंगे, जब रुकू का टाइम होगा तब शरीक होंगे। ऐसे खुद नज़ारे हैं इस तरह के, इस तरह बिगड़े हमारे यहाँ के नौजवान जिस तरह बिगड़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह गफलत के शिकार हैं, दूसरों के यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरों के यहाँ ज़ौक़ शौक़ पैदा कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नौजवानों में जज्बा और शौक़ पैदा नहीं होता है? तरावी में पीछे, नमाज में पीछे, मस्जिदें खाली, जुमा के दिन मस्जिदें खाली, ये हम ही लोगों को ही नसीब क्यों हो गया है? जब शौक़ और ज़ौक़ न रह जाए, दीन से मोहब्बत ना हो, दुनियादारी घर कर ले या कि लाखैरे बन जाएं, अच्छे बुरी के कोई तमीज़ ही ना हो, तब जा कर के ये माहौल पैदा होता है। लेकिन अगर जज्बा हो, शौक़ हो, पढ़ें लिखें दीन को, उलमा से रब्त रखें, दीनदारों से रब्त रखें, तो ये चीज़ बदलेगी। तो रमज़ान के महीने भी ज़रूरी है। रमज़ान में जब अपने ये ज़रूरी है कि फ़र्द अपने आप को बदले, अपने अखलाक को दुरुस्त करे, अपने तौर तरीक़ों को दुरुस्त करे, अपनी नमाज को दुरुस्त करे, अपने अक़ीदों को दुरुस्त करे। इसी तरह समाज और माशरे में ये भी ज़रूरी है कि ऐसा माहौल बनाएं कि लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़े, हमदर्दी बढ़े। रमज़ान का महीना मुआसात का महीना होता है। रमज़ान के महीने में सदका खैरात दिया जाता है। किस लिए? इसीलिए ना कि माशी तौर पर जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं,
उनकी ज़रूरत पूरी हो। लेकिन ज़रूरत पूरी ही मसला नहीं है, मसला ये भी है कि समाज माशरे में जो नाहमवारी है, जो ऊंच नीच है, जो छोटे जो मालदार और गरीब की तमीज़ हो गई है हर चीज़ में, एक कल्चर बन गया है कि ये गरीब है तो उसकी नज़रअंदाज करो, ये अमीर है तो उसकी दुनिया अलग है, वो अलग रहे सहे खाए अंदाज अख्तियार करता है, गरीब पीछे छोड़ दिया जाता है। रमज़ान का महीना मवासात का महीना है, मसावात का महीना है, हमदर्दी का महीना है, बराबरी का महीना है, उखुवत का महीना है, दिलों को जोड़ने का महीना है, बुग़्ज़ को, नफ़रत को, हसद को, कीना को, कपट को निकालने का महीना है। रमज़ान के महीने में एक मुस्लिम की ओवरहालिंग की जाती है, उसकी इस्लाह की जाती है, उसका तज़किया किया जाता है, एक अच्छा मुसलमान बनाया जाता है, उसकी जितनी खराबियाँ उसको दूर की जाती हैं। रमज़ान का महीना इसलिए आया है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया लालकुम तत्तक़ून, रोज़ा किस लिए रखवाया जाता है? ताकि मुत्तकी बन जाए। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा का मतलब ये है कि उसूल की ज़िंदगी गुजारो, निज़ाम की ज़िंदगी गुजारो, सही ढंग से दीन पर अमल करने की कोशिश करो, दीन पर अमल करो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, जहन्नम से दूर हो जाओ, जन्नत में दाखिल हो जाओ। तक़वा इसको कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा इसलिए रखा जाता है लालकुम तत्तक़ून, तक़वा आपके अंदर पैदा हो जाए। दूसरी जगह कहा गया लालकुम तशकुरून, शुक्रगुजार बन जाओ। शुक्रगुजारी किसे कहते हैं? ज़िंदगी नाम है सब्र का, शुक्र का। आधी ज़िंदगी सब्र है और आधी ज़िंदगी शुक्र है। सब्र ये है कि आपको जितनी परेशानियां हों उसको बर्दाश्त करें, अल्लाह की रज़ा की खातिर, दीन पर चलने की बुनियाद पर जितनी रास्ते में रुकावट आए, तकलीफ़ आए, परेशानियाँ आएँ, उसको झेलें, इसका नाम सब्र है। माशी तौर पर परेशानी आएँ, जिस्मानी तौर पर परेशानी आए, ज़हनी अदियत का सामान हो जाए, समाज माशरे में आपको गाली दिया जाए, समाज माशरे में आपको नज़रअंदाज कर दिया जाए, समाज माशरे में आपकी हैसियत ना हो, दीन की खातिर उसको बर्दाश्त करें, इसका नाम सब्र है। शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने आपको आशाइश दी है, अल्लाह ताला ने आपको हर चीज़ से नवाजा है, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, तो उसमें शुक्र अदा करें। शुक्र ये है कि दूसरों के एहसान उसका अदा करें, शुक्रिया अल्लाह ताला का ने सब कुछ दिया उसका शुक्रिया अदा करें। कौल के ज़रिए, फ़ेल के ज़रिए, अमल के ज़रिए, अक़ीदे के ज़रिए हर तरह शुक्रिया अदा करें। तो सब्र और शुक्र दो चीज़ें हैं। ज़िंदगी की किसी कहानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया अजबन लिअम्रिल मोमिन फ़इन्नहु अम्रुहु कुल्लुहु खैर इन असाबतहु सर्रा शकर व इन असाबतहु ज़र्रा सबर, कि मुसलमानों का मामला सारा का सारा सब चौकस होता है, खुशी की बात होती है कहा, और ये किसी को हासिल नहीं होती है कहा। अगर उसको खुशी हासिल होती तो शुक्रिया अदा करता है, और अगर परेशानी होती तो सब्र करता है। दो लफ्ज़ की कहानी है एक मुसलमान की ज़िंदगी। तो रमज़ान का महीना यह है कि प्रैक्टिस करें, रमज़ान के महीने में सब्र करना सीखें, शुक्र करना सीखें। और आज इंसान बेसब्रा भी है, ना शुक्रा भी होता है। आज पहचान ही बन गई है कि इंसान बेसब्रा भी होता है, ना शुक्रा भी होता है। अल्लाह इतनी नेमत अदा करता है फिर भी हाय हाय, सब कुछ देता है फिर भी हाय हाय। इंसान को अगर अल्लाह ताला सिर्फ जो उसके जिस्म में आँख है, कान है, नाक है, ज़ुबान है, होंठ हैं, यही इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं कि ज़िंदगी में सजदा, ज़िंदगी भर हमेशा सजदे में पड़ा रहे तो एक भी नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। लेकिन ये कि बकिया ज़िंदगी की जितनी ज़रूरतें हैं सब कुछ मिल रहा है, हवा मिल रहा है, पानी मिल रही है, खाना मिल रहा है, हज़म हो रहा है, सब कुछ सारी चीज़ मिल रही, फिर भी ना शुक्रापन। शुक्रिया क्या है? इंसान की तबीयत मिजाज बन जाए कि उसके अंदर भूख, हर्ष, हवस रही न जाए, वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहे, मिले उसके हिसाब से तब भी शुक्रिया अदा करे, उसके अपनी तलब के हिसाब से न मिले तब भी शुक्रिया अदा करे। ये है कैफियत होती है। तो शुक्र की कैफियत ये होती है कि इंसान की तबीयत मिजाज बन जाए, कि कभी उसकी निगाह में हवस न रह जाए, कभी उसको अंदर ये हमेशा शिकायत वाली बात न रह जाए, बल्कि हर हाल में अल्लाह ताला जिस तरह रखे वो शुक्रगुजार हो। इंसान क्या कर सकता है? कितनी उसकी तवानाई है, कितना बस है, हर एक की लिमिटेशन है, और हर वक्त हर लम्हे में इंसान अल्लाह की मदद का मोहताज है। अल्लाह ताला अगर इंसान को एक एक सेकंड, एक एक लम्हे में अगर उसको न नवाजे, न कायनात बाकी रह सकती है, न ज़िंदगी बाकी रह सकती है। अल्लाह ताला की रहमत की बुनियाद पर ये ज़िंदगी कायम है। अगर उसकी रहमत ना हो तो ये निज़ाम रहमत की बुनियाद पर ज़िंदगी चल रही है, अगर रहमत ना हो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और रमज़ान के महीने में रहमत कसरत से उतरती है, बरकत कसरत से उतरती है। इसका शऊर होना चाहिए, सीखो और जानो। रमज़ान के महीने में दुआ कसरत से करनी चाहिए। आदमी जब दुआ करता है
आपकी जितनी परेशानियां हैं उन परेशानियों को अल्लाह के सामने रखिए। आपको माशी परेशानी है, घरेलू परेशानी है, मर्ज है, मुताजी है, उलझन है, जालिम सता रहा है, जितनी भी परेशानियां हो सकती हैं, रमज़ान के महीने में इंसान को चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में अपनी ज़रूरतें पेश करें। अल्लाह की बारगाह में ये मस्जिद है कि क्या है समझ में नहीं आता किस अंदाज के लोग हैं। रमज़ान के महीने में जितनी उलझनें हैं उसको पेश करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला इंसान को संवार दे, बना दे, ज़रूरतें पूरी कर दे, बीमारियां दूर फरमा दे, उलझनें ख़त्म कर दे। कौन है जिसकी परेशानी नहीं है? हर आदमी परेशान है, हर आदमी मुहताज है, हर आदमी हर चीज़ के लिए उलझनों परेशानी में मुब्तला हो जाता है। सारी परेशानियों उलझनों को दूर करने के लिए अल्लाह की बारगाह में इंसान को पेश करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि हमारी ये उलझन है, हमारी ये परेशानी है, हम बीमार हैं, हम मरीज़ हैं, हमारी मईशत नहीं चल रही है, रोज़ी रोटी सही ढंग से मिल रही है, सारी चीज़ें इंसान के सामने लगी हुई हैं। कौन सा महीना आएगा कब इंसान अल्लाह के सामने बारगाह दुआ फरमाएगा? और जब इंसान अल्लाह से दुआ करता है तो कोई दुआ की तीन शक्ल होती है। जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाए, जो परेशानी आने वाली हो अब नहीं जानते हैं, अल्लाह ताला उसको हटा दे या उसको आखिरत में उसके लिए ज़ख़ीरा फरमा दे। दुआएं बेकार नहीं जाती हैं। अगर इंसान समझे कि हम कर रहे हैं, हमारी दुआ सुनी नहीं जा रही है, पूरी नहीं हो रही है, तो उसको मायूस नहीं होना चाहिए। बसा औक़ात बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन दुआएं उसके रास्ते में रुकावट बन जाती हैं और वो परेशानियाँ आती ही नहीं हैं। तो इंसान को चाहिए कि दुआ करना सीखे, परेशानियाँ हल हों। रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। रमज़ान के महीने में मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिद एक मुसलमानों की तहज़ीब की सबसे नुमाया शक्ल होती है। मस्जिद में जाएँ तो ये भी कि कैसे बैठें, कैसे सब बनाएं, किस अंदाज से वहाँ अदब व एहतराम से बैठें, शोर ना हो, हंगामा ना हो, और बच्चे बड़े आगे बैठें, छोटे पीछे बैठें, ये सारी तरतीब दी गई इस्लाम में। अगर आप मस्जिद में हाजिर होना जानते हैं, बैठना जानते हैं, इबादत करना जानते हैं, सही तरीके से बैठते हैं, सही तरीके से रहते हैं, खामोशी अख्तियार करते हैं, तो इसका मतलब अल्लाह ताला की बारगाह में आपको मिल सकती है सनद एक महज़्ज़ब और शाइस्ता लोग हैं। लेकिन अगर बैठने की तमीज़ नहीं है, अगर यहाँ सुनने गैर से सुनने की तरीब नहीं, चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। रसूल ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि मस्जिद में आदमी जाता है, अगर एक लफ्ज़ बात कर देता है तो उसकी हाज़िरी बेकार हो जाती है। किस लिए बताया गया है? तहज़ीब की सबसे बड़ी अलामत ये होती है, और एक मुसलमान को तहज़ीब सिखाई जाती है मस्जिद से कि आप वहाँ आएँ, कैसे बैठें, कैसे रहें, कैसे खामोशी आप करें, कैसे सुनें, ये सब। और जिस मस्जिद में लोग अगर बैठ नहीं जानते हैं सारी चीज़ें, तो उनको समझना चाहिए, जानना चाहिए, तहज़ीब सीखनी चाहिए। ये कोई चौपाल नहीं है जैसे चाहो बैठो, जैसे चाहो, जैसे चाहो जाओ, जैसे चाहो शोर मचाओ और जिस तरह चाहो उल्टे सीधे बैठते रहो। पहली सब पहले भरनी चाहिए और खामोश से बैठना चाहिए। यहाँ बात चाहे छोटा है बड़ा हो, किसी बात करने की गुंजाइश नहीं होती है। और अगर बात किया तो इसका मतलब ये है कि आए आप अपने साथ धोखे ले गए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम दीन को सही तौर पर समझें, दीन पर अमल करने की कोशिश करें। रमज़ान का जो बाबरकत महीना मिला हुआ है, इस बाबरकत महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम सवाब कमाएं, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों का अंबार लगाएं, अपने लिए दुआ करें, अपने जो चले गए हैं दुनिया से घराने के लोग, माँ बाप भाई बहन कुंबा कबीला के लोग, उनके लिए भी दुआ करें, उनको भी महरूम नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए, हम की नेकियों को कबूल फरमाए, हमें तौफीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें नेकी करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुरखुरी और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रज़ा हासिल करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।